नमस्ते बिटिया। हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज जेवीएन प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार वंगनानी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी। I welcomes you all at 1 p.m. class in May 2020 on digital version 2 at JVWU platform, which is the best women university in India. We are delivering these digital sessions on YouTube video channel at following link, which you can see as per schedule provided by the university. Having the best homeopathic college in Jaipur. Please listen carefully. Hope I will be able to satisfy your quest for knowledge. In case any doubt in your mind, please drop your queries in comment box, which I will answer in the problem solving session as allotted by the university. Let us now begin with the digital session. And the title of this session is Kant's View on Homeopathy, Part 2. Kant states that the aggravations and ameliorations found in peculiar disease states are not so simple. The disease that may arise from a single dose of sulfur in the last stage of phthisis is most astonishing. तो जब किसी established रोग की दशा में कोई रोग बढ़ता है या घटता है तो वो कोई सामान्य चीज नहीं होती है। वो ऑब्जर्वेशन लिए जाने की आवश्यकता है, उसको इंटरप्रेट किए जाने की आवश्यकता है कि क्या चल रहा है। खासकर हम जब देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग के केस में अगर हमने जो कि अगर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग की लास्ट स्टेज है खासकर और हमने सल्फर हायर पोटेंसी में दे दी है, तब ऐसी हायर पोटेंटाइज ड्रग को दिया जाना उचित नहीं है। उससे क्या क्या हो सकता है। इन सच केस sulfur given to the patient in last stage of consumption, this is very surprising that we will observe what harm it causes. We will also observe that phosphorus also acts in such way and does great harm in such low forms of organic disease. I have several times known a chronic invalid to go on with little suffering for a long time and with a hope to stay the progress of her disease. Administered a single dose of very high potency of antisoric will only distress, put her to the bed, and from which time her downward course will be rapid. तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इस तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लो फॉर्म ऑफ डिजीज है जो कि मटेरिया पिकेंस के कारण हो रहा है, यानी कि वायरसेस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, एडवांस हो चुका है, पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं, वहाँ हम हाईली डायनामाइज्ड रेमेडी अगर दे देते हैं तो उससे रोगी का डाउनवर्ड कोर्स शुरू हो जाएगा जो कि बहुत रैपिड होगा और एंटीसोरिक ऐसे में उसकी सफरिंग को बढ़ा देती है और लंबा कर देती है। If a carefully selected antisodic aggravates a low form of disease sharply and the aggravation is protracted and no amelioration of the general condition follow, no more antisoric so should be thought of in that patient. अब ऐसे केस में जहाँ पे इस तरह की लो फॉर्म ऑफ डिजीज है, एडवांस स्टेज है और हमने एंटीसोरिक अप्लाई करके देखा है और हमने देखा कि एग्रावेशन हुआ है और वो एग्रावेशन डाउन नहीं आ रहा है, उसमें वापस रिलीफ नहीं आ पा रहा है, तो भूल के भी आगे एंटीसोरिक अप्लाई ना करें। वहां पे सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन विच आर रिजोर्टेड टू पैलिएशन हैव टू बी गिवन। पैलिएशन ही रिक्वायर्ड है ऐसे केसेस। इन गाउट, कैंसर, थायसिस, ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ सच काइंड, this rule holds good. Any physician who has followed the use of hypotency for a considerable time must feel it. तो ऐसे physicians जो कि hypotensies को use करते हैं
रोगियों के इलाज में उन्होंने ये जरूर महसूस किया होगा, कई बार महसूस किया होगा कि अगर एडवांस स्टेज है, ऑर्गेनिक चेंजेस आ चुके हैं रोग के कारण, तो उस दवा को देते ही रोग बढ़ता चला जाता है और हमें ऐसी दवाई देने से बचना ही होगा, जो कि हाईली पोटेंटाइज्ड है, एंटीसोरिक है और डिजीज एडवांस्ड है. देन who can say there is no power developed? Only he who has not found this method of treating the sick. अब कोई व्यक्ति कहता है कि होम्योपैथी दवाई तो सिर्फ एक प्लेसिबो है, इसमें कोई पावर नहीं है. How someone can say like that? तो फिर क्यों वो रोग इतनी तेजी से रैपिडिटी के साथ डेटोरेट होना शुरू हो गया जब हमने उसकी हाइपरटेंसिव दी मेडिसिन की? इसीलिए क्योंकि इसमें ये पावर्स हैं, ये एक प्लेसिबो नहीं है. So this is a proof that homeopathy is not a placebo. In organic suffering, if you give hypertension, you will see that the disease will deteriorate. This is a proof that homeopathy medicine acts. The physician that sees not these aggravations and only demonstrates that he has made few or no homeopathic prescriptions. तो जो फिजिशियन ऐसे एग्रेवेशंस को ओवरलुक करता है, वो डेफिनेटली पेशेंट्स का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन छुपी है. अगर वो एग्रेवेशन शॉर्ट टाइम के लिए है और तेजी से एम्यूलेशन फॉलो करता है, तो वो केस क्योरेबल है, और जहाँ पे ये तकलीफ बढ़ती चली जाती है वो केस इनक्योरेबल है. द क्लोजर द होम्योपैथिक रिलेशन बिटवीन रेमेडी एंड डिजीज, जितना बढ़िया सिमिलर होगा मेडिसिन पेशेंट से, चाहे ऐसा डिजीज लो ओरिजिन का हो या एडवांस हो और इनक्योरेबल हो, उतना ही डिस्ट्रेसिंग एग्रावेशन इसमें आएगा. जितनी सिमिलर दवाई आपने जितनी डायनामाइज वे में दी, और जितना एडवांस डिजीज था उतना ही सीवियर एग्रावेशन आएगा. इवन द अनफॉर्चुनेट पर्सन कैन डाई ऑफ इट. ऐसे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है अगर यहाँ पे मोस्ट सिमिलर, मोस्ट डायनामाइज वे में हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिक डिजीज में हमने दवाई दे दी. फ्रेंड अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ऐसे ही केस में जहाँ उनसे गलती हुई. वंस अ फ्लैशी robust looking lady came into his clinic for professional aid. She looked so well that Kent suspected only a slight illness. वो इतनी ऊपर से रोबस्ट नजर आ रही थी कि पता नहीं चल रहा था कि वो इतनी बीमार है. लेकिन जब सी क्लोज स्टडी की, he found that she is suffering from rheumatism, endocarditis, suffocation, maybe that was asthma, a history of amenorrhea of 8 months duration, and she was having great bodily suffering indeed. And Kent was surprised that she is manifesting so little suffering. तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इतनी एडवांस पैथोलॉजीज हैं लेकिन सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली ये समझने की आवश्यकता है कि वाइटलिटी इतनी कमजोर है कि वह सिम्टम्स को एस्टेब्लिश भी नहीं कर पा रही. तो ये ऐसा ही एक केस था. तो डॉक्टर कैन compared her symptoms closely and found that pulsatilla is most indicated remedy, and he applied pulsatilla in dry single dose in higher potency, followed by Seclac or placebo. Now, what he observed that she went home but felt very badly. Her pelvic symptoms became more marked. She sent for me. उसने मतलब मेरे से संपर्क किया. She believed her flow would resume. उसको लगा कि उसके पेल्विस में भारीपन है और जो है ना एमिनोरिया जो 8 महीने से चल रहा है, अब उसका फ्लो वापस से एस्टेब्लिश होने लगेगा. I hoped from this report that I have made homeopathic prescription. उससे मुझे ये समझ में तो आ गया कि एलिमिनेशन शुरू हो गया. इसका मतलब मैंने सही सिमिलर मेडिसिन एक होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन दे दिया है. But the problem was that the organic condition or the organic changes were so progressed in that case that she struggled on. No flow appeared. Her pelvic symptoms were such as should accompany her menstrual nisus, but greatly intensified. Flow तो आया नहीं,
सिर्फ उसको इतनी तकलीफ होने लगी जैसा कि उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड में हुआ करती थी। आई डेयर नॉट रिपीट, मेरी हिम्मत नहीं हुई रिपीट करने की दवा। सक्सेस डिपेंड अपॉन परमिटिंग द रेमेडी टू हैव इट्स ओन वे बिकॉज द मेडिसिन वाज वर्किंग। डॉक्टर कैन कुडंट रिपीट एट दैट टाइम। और सक्सेस इसी में छिपी थी कि यहीं से कहीं हो सकता है कि रिलीफ शुरू हो जाए। उसको सिर्फ आश्वासन दिया गया, शी वॉज मेड कंफर्टेबल एंड डॉक्टर कैन वेटेड ऑन द रेमेडी ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल फॉर 1 or 2 weeks। तो आश्वस्त करते करते 2 हफ्ता बीतते। The endocarditis then began to show itself with all its terrors। अब उसके दिल की बीमारी भी बढ़ती चली गई। Dark blood began to come up from the lungs। उसके मुंह से खून आने लगा जो कि फेफड़ों से आ रहा था। Which grew worse day by day। मतलब हिमोप्टिसिस शुरू हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, ब्लड स्पिटिंग शुरू हो गई। आई फेल्ट आई मस्ट इंटरफेयर टू सेव हर लाइफ। मुझे लगने लगा कि मुझे अब दवा को एंटीडोट करना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक तरीके से एग्रवेशन हो रहा है। बट द ओनली रिजल्ट ऑफ द रेमेडीज वर पैलिएटिव। मैं थोड़ा बहुत ही इसको रोक पाया और कुछ दिनों में शी पास्ड क्वाइटली। उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो बहुत शांतिपूर्वक खत्म हुई। I have treated several cases of gouty rheumatism in which I could plainly see that every dose of medicine advanced the original malady। इसी प्रकार मैंने गठिया के अंदर भी देखा है कि जब बहुत सारी नोट्स बन चुकी होती हैं और मैं उसको अगर डायनामाइज मेडिसिन देता हूँ तो उसकी ओरिजिनल जो कंप्लेंट है उसमें हमेशा तकलीफ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं। Many times I have been forced to feel that the dose of dynamized drug added new force to the old disease and it progressed even more rapidly। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि ऐसी डायनामाइज मेडिसिन दे देने से जो पुराना रोग है उसको एक नई शक्ति मिल जाती है और वो और भी तेजी से प्रोग्रेस करने लग जाता है। I never saw such striking result from low attenuation। लेकिन लोअर पावर जो हम पे दवाइयाँ हैं ट्रैचुरेशन फॉर्म में, उसमें मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। Not long ago, I was called to the bedside of patient, last stage of phthisis। She had diarrhea and passed large quantities of colorless urine. Other symptoms accorded, and she took dose of acetic which controlled diarrhea polyuria. But immediately her chest symptom came on with greater force. Then I was able to control, and she sank rapidly। I am sure she would have lived much longer had I permitted less harmful conditions to go on। लेकिन हमें डायरेक्शन ऑफ क्योर भी इसमें देखना होगा कि लास्ट स्टेज ऑफ थाइसिस के पेशेंट में सिर्फ डायरिया की कंडीशन थी और कलरलेस यूरिन आ रहा था और उसको एसिटिक एसिड दे दिया गया लोअर पोटेंसीज में। यहाँ हम डिजीज के डायरेक्शन को हैम्पर कर रहे हैं। ये एलिमिनेशन जब भी जरूरी था। अब हुआ क्या, उसको देने से डायरिया तो ठीक हुआ, लेकिन जो उसके चेस्ट सिम्टम थे थाइसिस के वो बढ़ते चले गए एंड शी सैंक रैपिडली और वो बहुत जल्दी मौत की शिकार हो गई। तो हमें डायरेक्शन ऑफ क्योर के अनुसार भी देखना होगा। These things look strangely to the inexperienced physician, but there are facts and above all show the great power of our potentized remedies। तो ये बहुत ही अजीब महसूस होता होगा ऐसे नए डॉक्टर्स को जिन्होंने इस चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया है कि क्या ऐसा भी होता है, क्या दवाइयाँ इस तरह से रिएक्ट कर जाती हैं। तो हम पे क्या इतनी रिएक्टिव पावर है। द ट्रूली अप्रोप्रिएट रेमेडी कॉमनली डेवलप्स द एविडेंस ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस इन ऑल काइंड ऑफ सिकनेस। जो दवाई मोस्ट सिमिलर है वो ही मोस्ट ससेप्टेबल भी होती है पेशेंट के लिए, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता भी रखती है। एंड द एक्सट्रीम डेंजर ऑफ रिपीटिंग रेमेडीज इज ऑलवेज देयर। और यहाँ पे अगर रिपीटिशन किया जाता है तो और भी डेंजरस है। इफ देयर इज एनीथिंग आई ड्रेड in incurable disease, my experience in this line has been greater than I could ask।
While these things have shown the danger of repeating medicines, they have also taught me another thing. I am generally able to predict the gravity of disease. I have seen troublesome aggravations, pleasant increase of existing symptoms, or even new symptoms appearing as presumptive evidence of good selection. तो ऐसे डिजीज जिसमें थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक चेंजेस प्रोड्यूस हुई हैं, डॉक्टर कैंट कहते हैं कि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस इसमें लिए हैं कि वो जो ट्रबलसम एग्रावेशन है वो कई बार एक प्लेजेंट इंक्रीज ही होता है, उसके बाद जो है आराम आना भी शुरू हो जाता है, तो कई बार ये गुड सिलेक्शन भी बनता है। तो यहाँ पहचाने जाने की आवश्यकता है कि डिजीज कितना एडवांस है, तो नॉलेज ऑफ डिजीज यहाँ अप्लाई करने की आवश्यकता है कि किस स्तर पे हमें कितनी हाईली डायनामिक दवाई देनी होगी। In the Western country, our diseases are so mixed that unknown quantity or something that we call malaria, it is necessary to repeat medicines oftener in acute disease than in most countries. तो डॉक्टर कैंट बता रहे हैं क्योंकि वो एक वेस्टर्न कंट्री में रहने वाले थे, यानी कि यूएस में रहने वाले थे, कि उनके यहाँ पे डिजीज की जो पिक्चर्स हैं बहुत ही मिक्सड होती हैं क्योंकि पैलिएटिव मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मलेरिया जैसी स्टेट्स में उनको काफ़ी जल्दी जल्दी जो है रिपीटेशन करना पड़ता है ताकि मरीज को आराम मिले, टोटलिटी को कंसिडर करते हुए। So malaria disease and states are so cumulative in character that the effect of single dose is soon exhausted and another becomes necessary. खासकर मलेरिया में तो बहुत जल्दी जल्दी आपको डोजिंग करनी पड़ती है ताकि अगला बुखार का दौर, चिल का दौर वापस शुरू ना हो जाए। Therefore, I find myself repeating frequently in many acute cases. यहीं से मैंने acute cases में frequent repetition को जाना। I begin by repeating once in 2 hours in a fever that is continued type, but as soon as I see signs of remission, I stop the medicine and wait on Saclac. जब बुखार बना हुआ है तो मैंने बार बार दवाइयाँ दी, पर जैसे ही मैंने देखा बुखार टूटने लगा, मैंने दवा को रोका, प्लेसिबो दी। When a fever is going up, I repeat, and the instant it has ceased rising, और फिर मैंने देखा जब बुखार बढ़ने लगा तो भी मैंने बार बार दवाई दी, फिर मैंने देखा कि वो राइज होना रुका तो मैंने दवाई को रोका। I generally administer 1 or 2 doses in apyrexia and wait for the result. और जब बुखार नहीं है तो ऐसे में मैं 1-2 खुराक दे देता हूँ ताकि वो वापस नहीं हो, रिजल्ट के लिए वेट करता रहता हूँ, तब मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करता। I seldom administer medicine until the paroxysm has been completed. और जब तक जो हाइट पे होता है फीवर तब तो मैं दवाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही and when the first dose is followed by a perceptible aggravation, a second dose should never be given. तो एक बात तो ये है कि जब हाइट पे हो रोग तब दवा नहीं देना है, नहीं तो इसकी इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी कि वो अनबियरेबल हो जाएगा। दूसरा, जब आराम आना शुरू हो जाए तो डोज को रिपीट ना करें, ये प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया। तो फीवर के उतरते हुए ढाल पे जब मैं नीचे की ओर आ रहा है वो, तब मैं दवा दे सकता हूँ, जब वो चढ़ने जा रहा है तब मैं दवाई दे सकता हूँ, पर उसकी हाइट पे मैं दवा नहीं देता। When a medicine aggravates, it will generally influence the patient much longer than when no such aggravation has been observed. तो एक ऐसी दवा जिसने जिसने रोगी के लक्षणों में इजाफा कर दिया, एक स्लाइट इंक्रीज किया एटलीस्ट, वो दवा उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन बना पाती है, रादर ऐसी दवा जिसने सिर्फ सीधा आराम दे दिया, उसका आराम दिया हुआ बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन जिसने एग्रावेशन किया उसके बाद रिलीफ आया वो एक लॉन्ग टर्म तक रिलीफ में बदल जाएगा। तो यही तो होम्योपैथिक एग्रावेशन है। An amelioration that begins forthwith also demands that all medicine be stopped. अगर रोगी में आराम आ गया है दवा देने के बाद तो ये इंडिकेशन है कि दवाइयों को रोका जाए, उसको सैक्लैक यानी कि प्लेसिबो पे रखा जाए। But such amelioration is seldom so striking as when the amelioration has been preceded by a slight aggravation. लेकिन ऐसा एमलोरेशन
वो ज़्यादा मार्क्ड नहीं रहता, खासकर वो एमलोरेशन ज़्यादा मार्क्ड रहता है जो कि प्रीसीड बाय स्लाइट एग्रावेशन, यानी कि जिसके पहले थोड़ा सा रोग बढ़ा और फिर आराम आना शुरू हुआ, वो एक लॉन्ग टर्म एमलोरेशन साबित होता है। Immediate amelioration often indicates the absence of deep-seated disease. लेकिन ये बात तो पक्की है कि तुरंत आराम आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब गहराई पे रोग नहीं है। Especially in this case, with the use of long-acting medicines, we can proceed. ऐसे केसेस में हम हायर पोटेंसीज दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है। तो किसी भी रोगी में अगर परखना हो तो उसको एक बार लो पावर की डोज देके देखें, और अगर जैसे ही रोग में आराम, हल्का सा आराम फील होता है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, हम हायर जा सकते हैं। These go so deeply into the life that they shake the very foundation of the automatic existence. तो ऐसी जो हाईली डायनामाइज दवाइयाँ हैं वो एकदम गहराई में उसकी जड़ तक चली जाती हैं और रोग के एग्जिस्टेंस तक उसको हिला देती हैं। When these powers are so clearly demonstrated, can any man desire morphine to quiet a patient in any kind of agony? तो जब इतनी सारी इस पावर को आप पहचान गए हैं तो क्या आप अफीम लेना पसंद करेंगे तकलीफ की अवस्था में? ऐसी नुकसानदायक दवा को लेना आप पसंद करेंगे, यानी पेन किलर लेना पसंद करेंगे जब आपके पास ऐसी दवाएं हैं जो कि आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करके पेन किलिंग एजेंट्स को रिलीज करा देती हैं? कैन एनी मैन फील द नीड ऑफ ग्रेटर फोर्स टू कॉम्बैट डिजीज? क्या आपको इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ चाहिए रोग को ठीक करने के लिए? Yes, there are men who do not know this force. It cannot be evolved at will by anybody who wills to evolve it. तो हाँ, कुछ लोग इस बारे में नहीं जानते तो वो ये गलतियां करते हैं। This force is never observed except by him who has learned philosophy taught in the organon of Samuel Hahnemann. वही आदमी इसको जान पाएगा जिसने कि सैमुअल हैनीमैन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को पढ़ा है और जाना है। And it is after, not before, looking upon the wonderful effect of remedy conforming to the law of similar, that one can appreciate the power it has with which to combat the ills of life and with which to defend frail man against the assault of this natural enemy. तो ऑर्गेनेंस से इसको जाना भी है और उसको अप्लाई करके उसको कंफर्म भी किया है कि कैसे ये एलिंग पर्सन्स को आराम देने की जो है क्षमता रखती हैं। Then to the question, what is homeopathy? I must answer, no man knows. होम्योपैथी को देखिए एक्सपीरियंस के द्वारा ही जाना जा सकता है। सिर्फ मैं आपको शाब्दिक रूप से बताऊं कि होम्योपैथी क्या है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई नहीं जानता ये। गॉड ओनली नोस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंट्रिकेट अनफेथोमेबल मिस्ट्री। ये इतनी बड़ी रहस्यमयी चीज है कि सिर्फ भगवान ही जानता है कि होम्योपैथी क्या है। मैंने आपको बताया ये एक ऐसा कौन है जिसका अपेक्स पृथ्वी पे है तो जिसका बेस स्पेस में। मैं तो आपको सिर्फ अपेक्स बता सकता हूँ, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिस में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेंगे तो आप इसको जानते चले जाएंगे या एक्चुअली क्या है। सो इट्स अ साइंस ऑफ प्रैक्टिस। While we are observing the folly of others, we must learn to avoid extremes in our midst. हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए और ऐसे एक्सट्रीम चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लेना चाहिए। We must not despise the original 30th of the master because we have found the CM is so many cases useful. तो हमें मास्टर की ओरिजिनल जो 30 पोटेंसी जो उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ की उसको भी ओवरलुक करना है, और हम ये भी जानते हैं कि CM बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। While revealing in the higher degrees of the true healing art, the younger and the weaker must be fostered while trembling, climbing the pathway up the hillside, so familiar to most of us. तो देखिए, जो खासकर की यूथ है और जो कि वीक पर्सन है, उसमें हमें फॉस्टर करना पड़ेगा हायर पोटेंसी से, उनको मजबूत करना पड़ेगा हायर पोटेंसी से, क्योंकि लोअर पोटेंसी उनमें रिएक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता
खो देती हैं। ऐसे में हमें हाई पोटेंसीज यूज करनी होंगी, तभी हम उन्हें क्योर के लिए अप हिल साइड जो है बूस्ट कर पाएंगे। While the way is beset with thorns, रास्ते पूरी राह कांटों भरी है, it is nevertheless the way of truth, and no part of it is to be despised. परंतु इसी में सत्य है और हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। With the young and the old, our faith must be pinned to the law of similars. पेशेंट हमारा यंग है, ओल्ड है, वीक है, लेकिन हमें स्टिक करना होगा लॉ ऑफ सिमिलिया पे, सिंगल रेमेडी पे, स्मॉलेस्ट डोज पे, इसकी डायनामिक पावर्स पे, एंड नॉट द लीस्ट प्रूवन ड्रग। तो इन सब चीजों से ही हम, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एकदम बूढ़ा व्यक्ति हो, वीक हो, फ्रेल्ड हो, कमजोर हो, उसमें जो है डायनामिक पावर से एक अच्छा चेंज ला सकते हैं। लेकिन हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि सिंगल दवाई दें, छोटी सी छोटी डोज, हाईली डायनामाइज्ड डोज दें और प्रूवन ड्रग्स में से चुनें। These coupled with our organic philosophy, we shall continue in doing good and living to do good. लेकिन चारों ओर हम देखते हैं सारी मटेरियल फिलॉसफी है, उसके बीच हमें अपनी चीज़ों से अच्छा करके देना होगा और करते रहना होगा। So this was Kant's view on what is homeopathy. At the end of this lecture or session, I would like to give you an assignment of which we have allotted maximum marks, that is 10, and time is 30 minutes. And the question is, the quote by Hahnemann: many times I have been forced to feel that the dose of dynamite drug added new force to the old disease, and it progressed even more rapidly. कैंट कह रहे हैं कि मैंने ऐसा देखा है और मैं ऐसा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि मैंने जब हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन दी किसी पुराने रोग में, तो उसमें एक नई शक्ति आ गई और तेजी से प्रोग्रेस करने लगा। What Dr. Kent ought to establish in this statement? डॉक्टर कैंट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि पुराने रोग में हाइपोटेंसी देने से क्या परिणाम हो सकता है? डॉक्टर कैंट क्या कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। So बिटिया, hope you liked and grasped the session. In case you have query, please mention in the comment box given here. I will resolve the query on the day allotted by the university. Hope I am able to satisfy your quest for knowledge in this session. Thank you for being attentive during this lecture. Take care of yourselves. Thank you all. See you again in the next lecture.